Hi students, welcome to my channel. In this video, we will discuss all the important formulae of trigonometry for class 10 ICSE. Now, trigonometry means it has two chapters. One is trigonometric identities and heights and distances. So, we will see all the important formulae of the chapter trigonometric identities, and I will also give you some important tips for proving trigonometric identities. And heights and distances, it's उसमें कुछ formula नहीं है. You have to know the basic concepts. Figure is important. If you draw the figure properly, then question गलत हो ही नहीं सकता. Figure draw करना है, figure को explain ठीक से करना है, and then start with solving the question. ठीक है? So that's it. Let's start. Now first is basic formula. Sin theta is perpendicular upon hypotenuse. Cos theta is base upon hypotenuse. Base is also called adjacent side, and perpendicular is also same as opposite side. Okay, and tan theta is perpendicular upon base or opposite side upon base. And इसको याद रखने के लिए पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले. Okay, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले. So sin theta is p by h, cos theta is b by h, tan theta is p by b. Okay, then you need to know all the reciprocal relations. Sin theta, cosecant theta are reciprocals of each other. Sin theta into cosecant theta will be 1. So sin theta को हम लोग 1 by cosecant theta लिख सकते हैं, या फिर cosecant theta is 1 by sin theta. Same way cos theta into secant theta is 1, cos theta is 1 by secant theta, और secant theta is 1 by cos theta. Tan theta, cot theta are reciprocals of each other. Okay, so tan is 1 by cot और cot is 1 by tan. So ये सब proving questions में use होता है. So you have to know the reciprocal relations thoroughly. Then tan theta is sin theta by cos theta. Cot theta tan का reciprocal है. So cot theta is cos theta by sin theta. Now comes the three important trigonometric identities. तीन ही identities है, so इसको अच्छे से याद कर लेना. Sin square theta plus cos square theta is 1. 1 plus tan square theta is secant square theta, और secant square theta minus tan square theta is 1. Tan square theta minus secant square theta will be minus 1. Okay, same way 1 plus cot square theta is cosecant square theta, so or cosecant square theta minus cot square theta is 1. So you just have to remember these three important trigonometric identities which are very important for proving questions. ये कहीं पे भी trigonometry में use हो सकता है. Okay, नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का तो कुछ क्वेश्चन नहीं है, बट यू जस्ट नीड टू नो ऑल द फॉर्मूला. ट्रिग्नोमेट्री मीन्स यू हैव टू नो एवरीथिंग. सो साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस है, कॉस का साइन है, सीकेंट का कोसिकेंट है, कोसिकेंट का सीकेंट है, टैन का कॉम्प्लीमेंट कॉट है, एंड कॉट का कॉम्प्लीमेंट टैन है. सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 9th में था, अभी 10th में ICSE में नहीं है, बट स्टिल इट्स बेटर इफ यू नो ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. ओके, देन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए. साइन कॉस टैन का याद हो गया, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट है, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट है, टैन का रेसिप्रोकल कॉट है. ओके, सो आई होप अभी तक तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल सबको याद हो गया रहेगा. ओके, नाउ कमिंग टू हाइट्स एंड डिस्टेंसेस. फिगर इज इंपॉर्टेंट. ओके, फिगर ड्रॉ करने के बाद एक्सप्लेन द फिगर प्रॉपरली बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन. सपोज ये है, ऐसा फिगर है. सपोज ये पोल है, यू हैव टू राइट AB इज द पोल. सपोज ये कुछ कार है, समथिंग. सो सी, लेट सी बी द पोजिशन ऑफ द कार एट दिस मोमेंट. मीन्स आफ्टर ट्रैवलिंग से 5 minutes, लेट सी बी द पोजिशन ऑफ द कार. देन लेट D बी द पोजिशन ऑफ द कार आफ्टर इट हैज ट्रैवल्ड फॉर सो एंड सो टाइम. जो भी क्वेश्चन है उसके हिसाब से मेक द स्टेटमेंट्स. ओके, सो लेट C एंड D बी द पोजिशन ऑफ द कार. एंड सपोज एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है. फ्रॉम हियर यू हैव टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल and you have to mention draw a horizontal AX. Okay, and if the angle of depression is mentioned, first write this angle is 45 degree, therefore this angle is 45 degree. Straight away इसको 45 नहीं बोलना है. First you will say draw a through A, draw a horizontal AX, then write angle XAD equal to angle ADB equal to 45 degree. Because this is 45, therefore this is 45. Okay, so angle of depression का क्वेश्चन है, पहले you have to mention this is 45, therefore this angle is 45. Okay, then suppose this is the lamp post, C and D be the position of whatever, जो भी questions में mentioned है उसके हिसाब से you have to write everything properly. फिगर में जो जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा. एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग. 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, सो यहाँ पे कॉलम बना के कर लेना. इन राइट ट्रायंगल सपोज से ABC,
जो भी लिखना है, मोस्टली क्वेश्चंस tan से होता है, सो यू कैन राइट tan 45 इक्वल टू, सपोज ए बी कॉमन है तो ए बी, एंड यहाँ से ट्राई टू फाइंड ए बी. सेम वे इन राइट ट्रायंगल से सपोज ए सी डी और वॉट एवर, या ए बी डी. सो इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, अगेन tan ऑफ जो भी एंगल है, ये जो भी है, इक्वल टू ए बी. सपोज ए बी है तो ए बी अपॉन, दिस इज, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, ओके. ए डी, यहाँ से ए बी निकाल लेना. नाउ दोनों साइड से ए बी हमने निकाला है, सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. फ्रॉम 1 and 2 दोनों आर एच एस को इक्वेट कर लेना. सो यू विल गेट वन अननोन क्वांटिटी एंड उसको इनमें से किसी में भी सब्सटीट्यूट करो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए बी. ठीक है. सो ऐसे कॉलम बना के यू कैन डू सच क्वेश्चंस. ओके. सो राइट साइड में फिगर इज इम्पॉर्टेंट, देन गिवन में एवरीथिंग अबाउट द फिगर, कि फिगर में क्या क्या है, एंड देन इन राइट ट्रायंगल दिस, देन इन राइट ट्रायंगल दिस. सो दोनों में जो भी कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में एक चीज़ कॉमन रहेगा. सो फाइंड दैट कॉमन क्वांटिटी. जैसे यहाँ पे ए बी है, इसमें भी ए बी निकालो, इसमें भी ए बी निकालो. फ्रॉम 1 and 2 इक्वेट आर एच एस. सो यू विल गेट दो अननोन क्वांटिटीज रहेगा, सो उसमें से एक मिल जाएगा एंड दूसरा इसमें सब्सटीट्यूट करके यू कैन फाइंड द सेकेंड थिंग. ओके. एंड इन बेस एंगल्स, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में दिस इज वन कॉमन थिंग. बेस एंगल्स दो रहेगा. एंगल क्लोजर टू द टावर इज द लार्जर एंगल. ओके. सो ये दो एंगल्स रहेगा. तो ये जो टावर के पास में है, सपोज एक 45 है, एक 30 है, ये 45 है, ये 30 है. ओके. सो ऐसे अल्फा बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, सो दिस इज 45, दिस विल बी 30. सो ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन में 30 45 बेस एंगल्स दिया है, यहाँ पे 30, यहाँ पे 45 लिखोगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा. एंगल क्लोजर टू द टावर इज लार्जर एंगल. ओके. फिगर कैसे भी बना सकते हो, मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया है, यू कैन ड्रॉ लाइक दिस ऑल्सो. ठीक है. एंड ऐसे जो भी क्लोजर टू द टावर है, देन ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा. जो भी टावर के पास वाला एंगल है, दैट इज अ लार्जर एंगल. ओके. सो एंड फिगर प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है. ओके. नाउ कमिंग टू प्रूविंग क्वेश्चंस में बहुत सारे बच्चों को डिफ़िकल्टी होता है. प्रूविंग क्वेश्चंस में बिल्कुल भी डरना नहीं, बहुत आसानी से हो जाता है. कुछ कुछ क्वेश्चंस तो 2-3 स्टेप्स में हो जाता है, बट इट माइट कैरी 3 marks 4 marks. आप लोगों को लगेगा अरे ये तो 3 marks का है, कुछ गलत तो नहीं कर दिया. ऐसा नहीं है. प्रूविंग क्वेश्चंस कभी कभी 2 स्टेप्स में आ जाता है, लेकिन इट माइट कैरी 3 marks. ओके. सबसे पहले कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा. इफ़ यू कैन नॉट डू एनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कुछ भी नहीं आ रहा है, कन्वर्ट, टैन, कॉट, सीकेंट, कोसिकेंट रहेगा, तो सबको कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस. ओके. दिस इज लाइक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा. सो कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस एंड यू विल गेट द आंसर. ओके. देन ऐसे क्वेश्चंस में व्हाट यू हैव टू डू, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, दैट इज रैशनलाइजेशन जैसे करते हैं. एंड किस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, सी यहाँ पे क्या है, कॉस ए. कॉस कैसे मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. सो यहाँ से मिल जाता है. फर्स्ट राइट LHS, यू नीड 1 माइनस साइन ए, क्योंकि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, यू विल गेट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. सो रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ए एंड यू विल गेट कॉस ए. सो इट इज़ वेरी क्लियर कि यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए. सो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए. सो ऊपर क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड डिनोमिनेटर विल बी 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर. सो ऊपर कॉस स्क्वायर है, सो वो कॉस ए हो जाएगा. यू हैव टू शो ऑल द स्टेप्स अपॉन, एंड नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए. मिल गया आंसर. सो इट्स नॉट कंपल्सरी कि हमेशा डिनोमिनेटर के ऑपोजिट साइन से ही मल्टीप्लाई करना है. सी RHS व्हाट इज नीडेड, अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रोसीड. ओके. Now here cosecant and tan है, but you need not convert everything in terms of sine and cos. This question can be easily solved by using trigonometric identity. You have 1 plus tan square theta is secant square theta, 1 plus cot square theta is cosecant square theta. ओके. सो कोसिकेंट स्क्वायर ए को हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, या फिर कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए. सो यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू cosecant square a minus 1 is cot square a. So यहाँ पे this becomes cot square a
into tan square a equal to 1. Write the identity here. Okay, then इसको directly cancel नहीं करना है. You have to show the reciprocal relation. Okay, sorry, this is RHS. So cot square a tan square a. Now cot square a is 1 by tan square a into tan square a. Show this reciprocal relation. This is important. Now it becomes 1, which is RHS. So यहाँ पे easily this question is solved by using the identity. Okay. So every time you need not convert everything in terms of sin and cos. Some questions can be easily solved by using the identity या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वैसे भी सॉल्व हो जाएगा. एंड मेनी टाइम्स न्यूमरेटर में कुछ नहीं होगा, डिनोमिनेटर में यू विल हैव. अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देयर इज नथिंग इन द न्यूमरेटर, सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस बाय 1 माइनस साइन ए, इसके ऑपोजिट साइन से. Okay, then you will get the answer. Okay, and many times you will have to use the identity a square minus b square. Okay, so a square minus b square is a plus b, a minus b, like 1 minus cos square a है. You will have to write this as 1 minus cos a, 1 plus cos a. ऐसे करने से वो क्वेश्चन न्यूमरेटर में यू माइट हैव 1 माइनस कॉस ए, तो वो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा. ओके, सो यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी काफ़ी बार यूज होता है. ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर प्रूविंग क्वेश्चंस. प्रूविंग क्वेश्चंस आर वेरी इजी. एंड एमसीक्यू में आई हैव ऑलरेडी मेंशन दिस बिफोर इन माय वीडियोस. अगर इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, डू द रफ वर्क एंड देन सॉल्व. उसके बाद टिक द करेक्ट ऑप्शन. ओके, एमसीक्यू में ऑलवेज डू द रफ वर्क. एक बार रफ में सॉल्व कर लेना एंड देन टिक द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. इफ यू वांट मी टू सॉल्व लाइक एनी क्वेश्चंस, फ्यू प्रूविंग क्वेश्चंस या कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करना है, लेट मी नो. आई विल डू इट इन माय नेक्स्ट वीडियो. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.